Assalamu alaikum everyone. Welcome to Learning and Interaction with Miss Aisha Qadir. How are you all? I hope you all are fine. So let's start today's class. So this is part 2 of the video and today we are going to start with AIR 2010 Paper 1 Variant 1 MCQs 11 till 20 and this is the part 2 of the video. I hope you have done with the part 1 of this video. If not, so I have provided link of the part 1 of this video in description box. Please like and subscribe my YouTube channel for getting more useful videos regarding exam preparation. Let's start. Okay, so this is our MCQs number 11. In this MCQs, the table shows the recommended daily intake of energy and of iron for females at 4 different ages: 6 months, 5 years, 25 years and 75 years. Okay, which shows the recommended daily intake for the 25-year-old female. So option number 1, energy. This box is for energy and this box is for iron in milligrams. So A 2.7 and iron intake 4.3, 6.5, 6.1, 7.6, 8.7, 8.1, 14.8. So if we are getting with the concept that 25 years of age is the active stage. 25 years of age is the active stage. So we can consider that in this stage, 25 years of female, this is the active stage. So in this stage, highest amount of energy is required. इस स्टेज में क्या होगा, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होगी and iron intake should also increase. While because 25 years of age is the age in which female having menstrual cycles also, might be pregnancy, might be having lactation. So in these all processes, energy is required and also iron intake is required. So in this respect, option number D is the right option. Okay, that iron intake is the highest and the energy intake is also highest. 5 similar plants are placed in test tube as shown. This is the test tube and this is the plant. Okay, oil to prevent evaporation of water. The drop of oil is there, the layer of oil is there basically on this water surface to prevent the evaporation, loss of water through evaporation. Okay, some of the plant have their leaves coated with grease to reduce transpiration. Each plant is weighted in its test tube at the start of the experiment and again 2 days later. The results are shown in the table. Plant 1, plant 2, plant 3, plant 4, plant 5, mass grams. At the start of the experiment, plant 1 105, plant 2 121, plant 3 107, plant 4 111 and plant 5 119. After 2 days, what will happen? You can observe that there is the decrease in the weight. Which plant had their leaves coated with grease? Achha. Now if we grease the leaf surface with oil, what will happen? The rate of transpiration will reduce. When rate of transpiration is reduced, there will be no evaporation of water, no water loss from the plant body. So just leaves को हमने कोट किया है ग्रीस से, वो लीव्स यानी कि वो प्लांट्स सबसे लेस शो करेंगे डिक्रीज इन देयर मास. सो आप ऑब्जर्व कर सकते इन प्लांट 1
initial at this stage 105, and there is the negligible amount of decrease 103. So we can consider that plant 1 may be covered with grease, and if you observe plant 2, so what you are observing there? You are observing there that from 1 to 1, now after 2 days plant reduce its mass in gram till 97. So this is the huge difference बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब leaf 2, the leaf belongs to plant 2 is not coated with grease. Then plant 3, same, there is a difference 107/84. So plant 3 is not coated with grease. Then plant 4, so you can observe here 111 to 110. This is negligible decrease in the mass in grams of the plant 4. So we can consider that plant 4 is, the leaves of plant 4 is also coated with grease. Then plant 5, 119 to 93, this is also the measurable difference. So that's why plant 1 and plant 4, the leaves of plant 1 and plant 4 is coated with grease. So which option is the right option? Option number B is the right option. Plant 1 and plant 4, because there is the negligible amount of decrease in mass in grams of these two plants. Okay. Now the graph shows the pH of the saliva in the mouth after eating sugar. When someone is eating sugar, what will happen? The bacteria which are present in the mouth start respiration. And which type of respiration? Bacteria in mouth start anaerobic respiration. In anaerobic respiration, when glucose molecule break down, so release what? Release lactic acid. When lactic acid is there, so the pH of mouth will decrease and pH of mouth become acidic. And this acidic pH is the root cause of cavities of tooth decay. So this graph is showing the pH of the saliva in the mouth after eating sugar. When someone put the sugar molecule in his mouth, pH of the mouth was neutral, and then from neutral to till in 5 times a minute, in 5 minutes, what will happen? 0 to 5, there will be the decrease in pH. pH start to decrease. pH क्या हो रहा है? कम होना start हो रहा है. Then 5 से लेकर आपका near about 25 minutes तक आप you are observing that constant low pH. Then उसके बाद pH again start हो गई enhance होना and reach towards the neutral. From 25 to 40 and 50, 45 till 45, what will happen? pH become neutral. When are the conditions in the mouth most likely to cause tooth decay? 0 to 5 minutes, 5 to 25 minutes, 25 to 45 minutes, 45 to 60 minutes. अब अगर आप ऑब्जर्व करो इन ऑप्शन ए दे आर सेइंग 0 to 5, तो 0 to 5 में डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही थी और ये बहुत शॉर्ट लिमिटेड टाइम था. अभी pH डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है 7 से then 6 फिर 5 पर आ रही है. तो अभी इतना चांस नहीं है आपके टूथ डिके का. एक तो टाइम स्लॉट बहुत छोटा है 0 से 5 मिनट्स. दूसरी बात pH न्यूट्रल से एसिडिक होना स्टार्ट हो रही है. Then if you consider this stage 5 to 25, you can observe constant decrease in pH and constant low pH you are observing here. So this is the most likely time, and 5 to 25 minutes is the ample amount of time which bacteria are getting to respire, to anaerobic, for their anaerobic respiration.
सो दिस इज़ द मोस्ट लाइकली पीरियड टू कॉज टूथ डिके, क्योंकि कांस्टेंट लो पीएच है एक तो, एंड 5 to 25 मिनट्स, यानी कि आपको बैक्टीरिया को 20 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, और 20 मिनट्स टाइम आर क्वाइट इनफ फॉर बैक्टीरिया टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम एंड दिस कॉज टूथ डिके. देन 25 to 45 अगर हम देखें तो पीएच अगेन स्टार्ट हो गई है इंक्रीज होना, तो टूथ डिके नहीं होगा. एंड अगर हम 45 से 60 देखें तो वो तो फिर बिल्कुल ही कांस्टेंट न्यूट्रल है, तो दिस इज़ द नो चांस ऑफ टूथ डिके इन दिस period of time. So that's why option number B is the right option. Okay, the diagram shows a vertical section through the heart, 1 2 3 4. Okay, then what are the functions of the numbered blood vessels? First of all, what we have to do, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन पार्ट्स को लेबल कर लेते हैं. One, what is one? This is the right atrium. This is the right atrium. This is right ventricle. This is left atrium, and this is left ventricle. Right atrium get blood from body, and which type of blood? Deoxygenated blood. Deoxygenated blood. Then right atrium contract करते हैं, blood pass toward right ventricle. When right ventricle contract, what happen? Blood goes towards the lungs. Blood कहाँ चले जाता है? lungs से through pulmonary artery. Pulmonary artery के through lungs में चले जाता है. Then when after purification, after oxygenation of blood, when oxygen is put into the blood, what happens? Lungs return this oxygenated blood towards the left atrium. So from pulmonary vein, left atrium get oxygenated blood from lungs. Lungs से oxygenated blood कहाँ आएगा? lungs से oxygenated blood left atrium में आएगा through pulmonary vein. Then left atrium contract, left ventricle में जाएगा. जब left ventricle contract करेंगे, blood कहाँ जाएगा? body की तरफ जाएगा, and through aorta. So these are the basically labeling. So what are the functions of the numbered blood vessels? Carries blood to the body. Blood कौन लेकर जा रहा है body की तरफ? aorta. So 3. What is 3? Yes, this is 3. Then check the remaining options. Carries blood to lungs. लंग्स तक ब्लड कौन लेकर जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ले जा रहा है, यानी कि जब आपका दिस सेकेंड पार्ट. यस, राइट. देन कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स. लंग्स से ब्लड लेकर कौन आ रहा है? लंग्स से ब्लड लेकर आ रहे हैं आपकी पल्मोनरी वेन, एंड कहाँ लेकर आ रहे हैं? लेफ्ट एट्रियम में. सो ऑप्शन नंबर 4. यस, ओके, ऑप्शन नंबर 4, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम. कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी. बॉडी से कौन लेकर आ रहा है ब्लड? आपकी सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा. कहाँ लेकर आ रही है? राइट एट्रियम में. सो यस, 1 कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट. ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. डी इज द राइट ऑप्शन. ओके, नाउ 15. The diagram represents a blood capillary with an adjacent cell. The arrows represent the transfer of substances between the capillary and the cell. Okay, so first of all, you should know about capillary. What is capillary? Capillary is the type of blood vessel where there is the exchange of material. क्या होता है? Exchange of material होता है between capillaries and tissue fluid. And what is tissue fluid? Tissue fluid is the type of fluid present around cell. So basically this is the capillary. Capillary is the type of blood vessel, and it is only one cell thick. इसकी जो लाइनिंग है वो 1 cell thick है, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर सकती है. यानी लाइनिंग बहुत कम है तो डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल पॉसिबल हो सकता है. ओके, so this is the tissue fluid, this is your cell, and this is the blood capillary. Blood capillary में क्या क्या है? रेड ब्लड सेल है,
ब्लड प्लाज्मा है, एंड दिस इज कैपिलरी वॉल विच इज़ ओनली 1 सेल थिक. और अब हम ऑब्जर्व व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग. बेसिकली विच एरोज रिप्रेजेंट ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एंड दीज आर द ऑप्शंस. बेसिकली ग्लूकोज कहाँ आना चाहिए? ग्लूकोज ऑब्वियसली ग्लूकोज ब्लड से आना चाहिए टुवर्ड्स द सेल. ब्लड से कहाँ आना चाहिए? सेल्स की तरफ आना चाहिए, बिकॉज सेल्स नीड ग्लूकोज फॉर देयर एनर्जी नीड्स. तो इसका मतलब है कि ब्लड से ग्लूकोज जाएगा टुवर्ड्स द सेल. तो ब्लड में ग्लूकोज कहाँ होता है? ब्लड में ग्लूकोज होता है प्लाज्मा में, इन डिजॉल्व फॉर्म. सो एरो कौन सा होगा? ब्लड से कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा. किसके थ्रू? ब्लड प्लाज्मा. दिस इज ब्लड प्लाज्मा, एंड ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज डिजॉल्व फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो वो ग्लूकोज ब्लड प्लाज्मा से एंटर होगा कहाँ पर? सेल में. सो ऑप्शन नंबर एस वाला ऑप्शन यू कैन ऑब्जर्व. ब्लड प्लाज्मा से कहाँ जा रहा है ग्लूकोज? सेल में जा रहा है. ब्लड प्लाज्मा से सेल. सो ऑप्शन नंबर दिस इज एस. एस कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? इस वाले ऑप्शन से. बाकी भी देन हम रिमेनिंग ऑप्शंस पे चेक कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन सेल परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, जब सेल एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, व्हाट हैपेंड? ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है. एंड व्हाट विल रिलीज आउट? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज द बाई प्रोडक्ट. और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से रिलीज होकर कहाँ जाएगी? ब्लड प्लाज्मा में जाएगी. सो अगर आप देखो ये टू एरो हैं जो सेल से बाहर जा रहे हैं. एक जा रहा है रेड ब्लड सेल की तरफ और एक जा रहा है ब्लड प्लाज्मा की तरफ. तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा एरो ठीक है? ब्लड प्लाज्मा वाला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेड ब्लड सेल के पास नहीं जाती, ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है. सो पी इज़ द राइट ऑप्शन. यस, ये भी ऑप्शन राइट हो गया. नाउ ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल. हाउ दे कैरी ऑक्सीजन? बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन. इनके पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन. एंड व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज द ग्लोब्यूलर टाइप ऑफ प्रोटीन विच हैज़ पॉकेट टू कैरी ऑक्सीजन. तो रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन जाएगा सेल्स की तरफ. दीज आर द रेड ब्लड सेल. और एरो आप ऑब्जर्व करो, रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? ये रेड ब्लड सेल, ऑक्सीजन जा रहा है आपके सेल की तरफ. सो ऑप्शन नंबर ये आर. सो दीज आर द राइट कॉम्बिनेशन. एस पी आर. S for glucose, for carbon dioxide P, and for oxygen R. R red blood cell से जा रहा है सेल में. So D is the right option. Okay. Now MCQs number 60. The graph shows changes in the air pressure within the lungs during one breathing cycle. अच्छा, what do you know about lungs pressure? Lungs pressure. What do you know about lungs pressure? देखो, there is the ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस बिटवीन एयर टू लंग. एयर से लंग में ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस होगा, एयर से लंग्स में. जब लंग्स का प्रेशर एयर प्रेशर से लो हो जाएगा, एयर प्रेशर हाई है एंड लंग्स का प्रेशर लो है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ से कहाँ होंगी? फ्रॉम एयर टू लंग्स होंगी. यानी दिस इज हैपनिंग इन इंस्पायरेशन. ये कब होता है? इंस्पायरेशन में होता है. इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जब आपके डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन उसके बाद आपके जो है आपके थॉरिक कैविटी है वो एक्सटेंड हो जाती है. आपका रिब केज अपवर्ड मूव करते हैं, तो जो थॉरिक कैविटी है वो एक्सपैंड हो जाती है. जब थॉरिक कैविटी एक्सपैंड हो जाएगी तो लंग्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है. सो दैट्स वाई प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है? डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर सब्सटेंस मूव कर रहे हैं. सो एयर है, एयर का प्रेशर ज़्यादा है, गैशियस प्रेशर एयर का ज़्यादा है, तो गैसेस मूव्स फ्रॉम एयर टू लंग्स, यानी एनवायरनमेंट से लंग्स की तरफ आ रही है, जो कि आपके इंस्पायरेशन में होता है. सो यू कैन ऑब्जर्व हेयर इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है? व्हेन स्टार्टिंग विद द साइकिल लंग्स का प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, लंग्स का प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है. तो लंग्स का प्रेशर डिक्रीज़ होने का मतलब है क्या हो रहा है? आपका इंस्पायरेशन स्टार्ट हो रहा है. जैसे जैसे इंस्पायरेशन कंप्लीट होता जा रहा है, यानी कि इंस्पायरेशन में आप बाहर की एयर बॉडी के अंदर आती जा रही है, प्रेशर इन्हेंस होना स्टार्ट हो रहा है. प्रेशर इन्हेंस होना स्टार्ट हो रहा है. प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था पहले और फिर प्रेशर ग्रेजुअली इन्हेंस हो रहा है.
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपकी जब प्रेशर मैक्सिमम पे इन्हेंस होके पहुंच गया, मैक्सिमम पहुंच गया, उसके बाद आपका क्या होगा, आपकी एक्सपायरेशन होगी। एक्सपायरेशन में क्या होगा, दोबारा से जब एयर बाहर चली जाएगी तो आपके प्रेशर जो इन्हेंस प्रेशर वो दोबारा डिक्रीज हो जाएगा। सो व्हाट कॉजेज द चेंजेस इन एयर प्रेशर ड्यूरिंग स्टेज एक्स। स्टेज एक्स में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम मसल्स, नो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन अगर डायफ्राम मसल्स की होगी तो इसका मतलब है कि आपका इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम्स ऑफ लंग, नो, क्योंकि देखो प्रेशर इन्हेंस होने के बाद डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग हो रहा होता तो प्रेशर डिक्रीज होता, ना कि इंक्रीज होता। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होने के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर लंग्स का वॉल्यूम इन्हेंस हो रहा होता तो प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता। आउटफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, लंग्स से एयर बाहर जा रही है। यस, लंग्स से एयर जो है आपकी बाहर की तरफ मूव कर रही है, यानी कि एक्सपायरेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से जब एक्सपायरेशन होगा आपका तो प्रेशर इन्हेंस होगा पहले और फिर डिक्रीज होगा, क्योंकि जब देखो एक्सपायरेशन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, लंग्स का प्रेशर हाई हो जाएगा और एयर प्रेशर लो हो जाएगा। तो अब क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ गैसेज होंगी फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। लंग्स से कहाँ जाएंगी, एयर में जाएंगी। सो प्रेशर इन्हेंस होके जो डिक्रीज हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि दिस इज स्टेज इज द एक्सपायरेशन स्टेज, और एक्सपायरेशन में क्या हुआ, लंग्स का प्रेशर हाई हो गया, इस वजह से गैसेस बाहर मूव कर रही हैं। तो दिस इज द आउटफ्लो ऑफ एयर, बेसिकली आउटफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। Cause relaxation of internal intercostal muscles are not responsible for expiration, they are responsible for inspiration. Okay, what do the cilia do in the bronchi of the lung? Cilia, what are the cilia? Cilia are the hair-like structure which are present in the bronchi of the lungs, and the role of the cilia is not to trap bacteria, because bacteria trap होते हैं आपकी mucus, bacteria trap करने के लिए mucus lining is there which secretes slime-like sticky substance through which bacteria can trap. But cilia is not responsible to trap bacteria, but to move mucus of the lung, move mucus out of the lung, mucus को बाहर move करते हैं, because these cilia are hair-like structure and ये to and fro move कर रहे होते हैं, इसकी वजह से mucus जो produce हो रहा होता है उस mucus को बाहर repel किया जा रहा है। Trap bacteria no, move mucus out of the lungs yes. So option number C is the right option. Okay, fitness training increase the concentration of the lactic acid that runners can build up in their muscles before pain stops them running. What is the consequence of this increase? Aerobic aspiration in the muscles can be more rapid, blood flow to the muscles is increased, more anaerobic aspiration can take place in muscles, more energy is needed by the muscles. Okay, lactic acid कब बनता है lactic acid? When the consumption of oxygen is higher than taking up of oxygen. जब जितनी ऑक्सीजन आप गेन कर रहे हो फ्रॉम एयर, गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है आपका वो कम हो जाए और ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाए। अब क्या होता है, आपकी बॉडी बेसिकली आपके स्केलेटल मसल्स शिफ्ट कर जाते हैं एनाएरोबिक एस्पिरेशन के ऊपर। एनाएरोबिक एस्पिरेशन में इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में और पेन स्टार्ट हो जाता है, फटीग स्टार्ट हो जाती है। सो फिटनेस ट्रेनिंग, इफ द पर्सन इज एथलीट, वो ग्रेजुअली ट्रेनिंग कर रहा है, फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी मसल्स ज़्यादा टाइम तक एनाएरोबिक एस्पिरेशन कर सकती हैं एज कम्पेयर टू द पर्सन जो कि नहीं जो है वो फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा। तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर लिटिल बिट अमाउंट में भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, मसल सोरनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी और पर्सन स्टॉप कर देगा एक्सरसाइज करना। बट द फिटनेस ट्रेनर, द वन हु हैविंग फिटनेस ट्रेनिंग, दे डेवलप some adaptations. Now their muscles can perform more anaerobic respiration, यानी more lactic acid concentration को accumulate कर सकती हैं और पेन लेट होगा उनको। So that's why option number C is the right option, because anaerobic respiration muscles में rapid नहीं हो सकती because ऑक्सीजन ही नहीं है। Blood flow to the muscles increase,
ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है टुवर्ड्स द मसल, बट इसका लैक्टिक एसिड कंसनट्रेशन से या पेन से कोई कंसर्न नहीं है. देन मोर एरोबिक एस्पिरेशन, यस दिस इज द राइट ऑप्शन. मोर एनर्जी इज नीड बाय द मसल्स. एनर्जी रिक्वायरमेंट दोनों की सेम होती है, चाहे वो फिटनेस ट्रेनिंग करे चाहे फिटनेस ट्रेनिंग ना करे, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज द सेम. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन कि मसल्स बिकम अडेप्टेड फॉर मोर एनर्बिक एस्पिरेशन. सो ज़्यादा इंक्रीज कंसनट्रेशन में लैक्टिक एसिड बिल्डअप कर सकते हैं रनर्स, ओके, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल. Which cannot be an example of excretion. Okay, what is excretion? Excretion is the removal of metabolic waste product. Removal of metabolic waste products. Now what is metabolic waste product? Metabolic waste product वो waste product होते हैं जो आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करे, आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करे. कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, यस. हम एयर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है इन आउटकम ऑफ एरोबिक एस्पिरेशन. अनडाइजेस्टेड फूड लीव्स द बॉडी थ्रू द एनस. देखो, अनडाइजेस्टेड फूड वो फूड मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, और फूड हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, बिकॉज वी आर हीटरोट्रोफ, वी आर नॉट ऑटोट्रोफ. हम प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते. वी टेक फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हमने एनवायरनमेंट से फूड लिया और वो फूड आपके लिए एग्जिस्ट था, इस वजह से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ. और जब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो एसिडस बॉडी से बाहर जा रहा है, सो दिस इज द नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन. क्यों नहीं है? क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है फूड. फूड हमारी बॉडी ने नहीं बनाया था, हमने इन्वायरमेंट से लिया था. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन. यूरिया आपकी बॉडी खुद से बनाती है बाय डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन. वाटर रिमूव थ्रू द किडनीज. वाटर जो मेटाबॉलिक वाटर होता है जो कि बॉडी में हम यूज़ करने के बाद जो रिलीज़ कर रहे होते हैं, दीज आर द मेटाबॉलिक वाटर, और वो आपकी किडनी रिमूव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो वो भी आपका एक्सक्रीशन की एग्जाम्पल में आता है. सो ओनली दिस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन. दैट अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि वो फूड जो हमने इन्वायरमेंट से लिया, आपकी बॉडी ने खुद नहीं प्रोड्यूस किया, so this is not the metabolic waste product, so this is not the example of excretion. Which structure are all involved in controlling human body temperature? Okay, human body temperature should be 37 degrees Celsius because this is the optimum temperature. Now in our body there are different organs, different structures which are associated to maintain this body temperature. सबसे पहले तो जो आपके blood vessels है near the skin surface, yes, they work to control the body temperature because ये सेंस करेंगे, जब नर्व सेंस करेंगे that there is a decrease or increase in the body temperature, तो then blood vessels अगर decrease है, जो आपका outer environment temperature वो cold है, तो blood vessels start to constrict which we can call vasoconstriction, जिसकी वजह से क्या होगा, less blood flow होगा towards the skin surface और heat loss कम हो जाएगा. एंड अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर हॉट वेदर है, what will happen, there will be the vasodilation, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा टुवर्ड्स द स्किन सरफेस और आपका जो हीट है वो बाहर रेडिएट आउट हो जाएगी, तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा. सेरिबैलम, नो, सेरिबैलम क्यों नहीं? बिकॉज सेरिबैलम इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इट इज एसोसिएटेड विद द पोस्चर बैलेंस. पोस्चर एंड आपकी जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, हाउ यू शुड सिट, हाउ यू शुड वॉक इन कोऑर्डिनेटिव मैनर, सो उसको सेरिबैलम आपके मेंटेन कर रहा होता है. सो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी ब्लड वेसल, यस. हाइपोथैलेमस, यस, बिकॉज हाइपोथैलेमस वो पार्ट है ब्रेन का जो सेंसेशन रिसीव करता है, जो सेंसेशन रिसीव करता है दैट एदर द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट व्हाट इज़ द आउटसाइड टेम्परेचर. देन हाइपोथैलेमस, इफ़ लेट्स सपोज कि आपका टेम्परेचर कोल्ड है तो स्केलेटल मसल्स स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट विच वी कैन कॉल शिवरिंग. सो यस, स्केलेटल मसल्स ऑल्सो प्ले a role in controlling human body temperature. Hypothalamus, yes, and blood vessel, yes. So option number B is the right option. Kidneys not controlling human body temperature. Cerebellum, because these two combo are not right. Kidneys, hypothalamus and skeletal muscles, so no, kidneys are not associated with controlling the human body temperature. Yes, water balance kidneys ज़रूर control करती है but not human body temperature. Okay,
So we are going to end with this class, and in next class we will discuss Air 2010 paper 1 variant 1 and MCQs number 21 till 30, and this will be the part 3 of this video. Take care. Thanks for joining us. Thanks for following us.